कर दे रहा हूँ, जाना जा देख। अब देख डॉक्टर ऐसे करेंगे तो पेशेंट से क्या उम्मीद करेगी? वाढला इतकपेक्षा जास्त होतं तर देवींचा वाढला होता 160-190 होता. तू दुधियाचे फुले हाँ Hello, Yes, ma'am. am I audible to everyone? Yes, ma'am. Okay. So shall we start, sir? Sir, actually you are not audible. Shall we start? Okay, okay. Hello. Am I audible now? Yes, yes, sir. Now you're audible. I'm audible. So, ma'am, yes, you can actually Okay. start. Okay. So I welcome everyone for the webinar on Be Optimistic. It is in association with Experts Edge, Be Your Dreams. Now here in this session, we'll be including aptitude. In that, we'll be having speed maths, reasoning, and some puzzles. And there are 3 points actually. Second one is Experts Edge, Mr. CAP, CRT, CAT, competitive exams. They'll tell you about the tie-ups or the batches. And the third point is for jobs, internships, and the placements, and the training at Expertrons. So today we have our speaker, Mr. Dibankar Banik sir. He is an ex-VNIT lecturer and he is having 15 years of experience as JEE trainer, Macmillan education trainer as well. So we welcome you, sir. Sir, you are not audible. Thank you so much, ma'am. Am I audible now? Yes, yes, sir. Now it is audible. No, So over to you, sir. We can start it. To be clear, ma'am, is the audibility very clear to all? No, sir. The audibility is not that much clear, sir. Okay. Okay. Let me check out with the audibility things. Just give me a minute. Speaker से ये सही है, ये भी सही है. Let me say पक्का. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Now audible. Now I am audible. है ना ma'am? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Thank you Yes, so sir. much Please start, for the introduction. Thank you, ma'am. Let me start. Well, a very good morning to all of you. Jai Hind, Jai Bharat, सभी बच्चों को. Today the topic is be optimistic. Now people generally mistake this be optimistic with Bachelor of Engineering and optimistic. This is something which has been coined by our creative, one of the most creative educator of India,
Nitin Rathod sir. So basically B as in B, a normal B, right? Not Bachelor of Engineering. Aptimistic is combination of both aptitude and optimism. Optimism, आशावादी, hopefulness, ये तो सबको है. घर में बैठ के 12 घंटे हम सोए रहेंगे फिर भी हम ऑप्टिमिस्टिक हो सकते हैं. मैं चांद तारे तोड़ लाऊंगा, सारी दुनिया पर छाऊंगा, बस इतना सा ख्वाब है ना? ऐसे ख्वाब होते हैं लोगों के, है ना? और आशावादी लोग तो सभी होते हैं. कौन निराशावादी होना चाहता है आज के तारीख में, जहां पे इतना मोटिवेशन है ना? टिप ऑफ द फिंगर में, यूट्यूब में इतने सारे मोटिवेशंस है. लेकिन optimism blended with aptitude, this is something called as optimistic. So we have to be optimistic in life rather than optimistic. तो आज के बाद आप किसी को बोलेंगे I am not optimistic, I am optimistic. I have optimism with a right blend of aptitude. क्योंकि आज की दुनिया पूरा विटी लोगों का है. इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी स्ट्रांग है तो यू सर्वाइवल ऑफ द बेस्ट इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी. और अगर इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी में आप एवरेज या बिलो एवरेज है तो आपको गुलामी करनी पड़ेगी, राइट? किसी और की. सो हम चाहते हैं हम लोग एक लीडर बने अपने फील्ड के, और हम लोग एक फॉलोअर बने उस फील्ड के जिसमें हमको नॉलेज नहीं है. वेल, टुडेज एजेंडा in this session, by the way, this session has been organized by our esteemed engineering college, Anjuman College of Engineering, under Department of Electrical Engineering and Electronics and Telecommunication Engineering. Right now, without wasting your time, let us understand the agenda of this session. इस सेशन का हम लोग एजेंडा समझते हैं. अच्छा, एक अच्छी बात है, मैं आप सबको देख पा रहा हूं, तो मेरी इच्छा क्या है कि आप लोग जब भी मैं इंटरेक्शन का मौका दूं आप लोग को, है ना? इट इज अ टू वे कम्युनिकेशन नाउ बिकॉज इट जूम हैज बीन लिंक्ड विद यूट्यूब. आप जब भी कुछ इंटरेक्शन करना हो तो आप आए, है ना? अपना ऑडियो और वीडियो ऑन करें और हम उसको प्रोसीड अहेड करें. सो द फर्स्ट थिंग फर्स्ट दैट आई वुड लव यू टू अंडरस्टैंड कि सबसे पहले करियर स्किल्स, सबसे मेजर पोर्शन तो यही होता है कि भैया what are the basic career skills. क्या आपके cognitive skills होना चाहिए, people skill होना चाहिए, intellectual, physical, emotional skills होना चाहिए. क्या skills होना चाहिए जो कि sum total आपका करियर को एक नया आयाम देगा. और करियर बनाने के लिए बेसिक इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड. आप देखिए, दुनिया में कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो जाए, चाहे वो कॉर्पोरेट का हो या गवर्नमेंट एग्जाम हो, सबसे पहले गेटवे क्या होता है? एक एंट्रेंस एग्जाम which checks out your knowledge, technical and aptitude, followed by GDPI, which checks out your attitude. So basically aptitude and attitude. Crack any exam with flying colors. I have a great point over here under the aegis of expert sage, है ना? ये कोई भी एंट्रेंस एग्जाम कितने आसानी से आप क्रैक कर सकते हो, है ना? मेहनत नहीं करके, स्मार्ट वर्क करके आप उसको क्रैक कर सकते हो, है ना? ट्रेनिंग, जॉब्स एंड प्लेसमेंट. आई बिलीव यहाँ पे और एक चीज होना चाहिए था, इंटर्नशिप्स. सो ये ट्रेनिंग, जॉब एंड प्लेसमेंट एक हमारा पैरामीटर रहेगा एजेंडा का. एंड टू व्हाट एक्सटेंट यू आर रेडी फॉर गेटिंग अ जॉब, आर यू एम्प्लॉयबल, राइट? एंड ऑफ कोर्स गुड टेकअवेज. सो वो टेकअवेज के बारे में बात करेंगे. देयर आर सम कॉम्प्लीमेंट्री टेकअवेज एंड प्रीमियम टेकअवेज. सो दिस इज दीपांकर बनिक साइनिंग इन. एक बस में एक लड़का अचानक ब्रेक जब बस मारती है तो वो एक लड़की पे जा गिरा, है ना? तो वो लड़की बोलती है, बदतमीज क्या कर रहे हो? तो बोलता हूं, मैडम इंजीनियरिंग कर रहा हूं, आप क्या कर रहे हो? सो इंजीनियर्स आर लाइक दिस, है ना? आउट ऑफ सिचुएशन दे क्रिएट देयर ओन जॉक्युलर क्रिएटिविटी. बट आई वुड लव टू टेल, इंजीनियरिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जहां पे आप 4 घंटे, 4 साल, 40,000 घंटे शायद अगर आप ऐसा पढ़ते होंगे, रिगरस स्टडी करते होंगे, 400 एक्सपेरिमेंट, 4000 असाइनमेंट, मतलब इतना मेहनत करने के बाद एक इंजीनियर बनता है. सो इंजीनियर बेसिकली इज सच अ प्रोफेशन जो चपरासी से लेकर चीफ मिनिस्टर तक बन सकता है. सो चपरासी वाले जो एग्जाम्पल्स है, आपने काफी बार पेपर में देखा होगा कि ये 10 पोस्ट के चपरासी के लिए गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, स्टेट गवर्नमेंट के लिए 1 लाख इंजीनियर्स या 10,000 इंजीनियर्स ने अप्लाई किया. और
हमारे अरविंद केजरीवाल जी खुद इंजीनियर है, राइट? सो फ्रॉम अ जर्नी फ्रॉम चपरासी टू चीफ मिनिस्टर, यू कैन बी एनीथिंग, एनी सेलिब्रिटी। सो यहाँ पे कुछ इंजीनियर्स है जिनके बारे में मैं बताना चाहूंगा, जो कि आप लोग, ये सभी वेल नोन फिगर है, पूरी दुनिया इनको मानती है, जानती है। कुछ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, चाहे वो सोनू सूद है ना, विक्की कौशल है ना, आप ये सभी कृति को आप जानते हो। ये सारे जो लोग हैं, इनकी एक खास बात है, इनका बेसिक बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का है। टू ऐड टू दिस, आपको आपके जानकारी के लिए, सोनू सूद जी जो है YCC से परहैप्स इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग किए हैं। उसी प्रकार से इंजीनियर्स बहुत बड़े बड़े, ये तपसी पन्नू जो भी है, आप इनको जानते हैं बहुत अच्छे से। ये इन्होंने अपने वक्त, इंजीनियरिंग के वक्त, एप्लीकेशन भी क्रिएट किया था, है ना। एप्लीकेशन मतलब जो आप लोग क्रिएटिविटी में करते हैं ना, एप्लीकेशन बनाते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं, है ना। और आज वो वन ऑफ द की सेलिब्रिटी है ना। सो किसी ने कहा है, तुम्हारे लिए, इंजीनियरिंग बच्चों का कहना है, तुम्हारे लिए प्यार की हम एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे, तुम्हारे लिए प्यार की हम एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे, तुम उसे डिबग करना वेट हम करेंगे, है ना। सो ये हमारा है, और उसकी क्रिएटिविटी, वो एप्लीकेशन फॉन्ट एप्स करके आईफोन के लिए बनाया, एंड शी वेंट ऑन टू बिकम व्हाट यू नो, राइट। यहाँ पे अगर आप देखोगे, हमारे बिलवेड अब्दुल कलाम सर, है ना, आप जानते हैं इनको पूरी दुनिया मानती है, पूरे इंडिया में इनके ऊपर एक डे मनाया जाता है ना, सर विश्वेश्वरैया सर। और आई एम हैप्पी टू टेल यू कि आई हैड अ प्रिविलेज टू सर्व VNIT, विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वन ऑफ द प्रीमियम NIT ऑफ इंडिया, राइट, इन द डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अब देखो, इंजीनियर्स क्या नहीं होते, ये सारे इंजीनियर्स जो है वो सेलिब्रिटी टर्न हुए। ये बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज है जिनको पूरी दुनिया जानने लगी है। इनको ये तो लाइक इतिहास के पन्नों में परमानेंट अपना नाम दर्ज करा दिया। डॉक्टर, चाहे वो हमारे, है ना, होमी जहांगीर बाबा हो, डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा, या डॉक्टर अब्दुल कलाम सर हो, या डॉक्टर विश्वेश्वरैया जी हो। मैं यहाँ पे एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगा, इंजीनियर्स का क्या लेवल होता है। वन नाइट, ये इंसिडेंट आपने सुना भी होगा, ट्रेन वॉज मूविंग अहेड टुवर्ड्स अ डेस्टिनेशन मिड ऑफ द नाइट, और अचानक एक व्यक्ति उठता है, सब सोए हैं ट्रेन में बकायदा, है ना, मध्य रात्रि में, और ही पुल्स दी इमरजेंसी चेन, राइट। वो ट्रेन में जो होता है उसको पुल करते हैं, तो सारे लोग की भीड़ जमा हो जाती है, रुक जाता है ट्रेन फॉर नो रीजन, आउट ऑफ नथिंग ही हैड डन दैट। तो लोग पूछते हैं ऐसा क्यों किया। ही सेज, आई कुड हियर द वाइब्रेशंस ऑफ द रेल ट्रैक्स, right, and because of his skills, his cognitive, intuitive and technical skills, he could calculate और मैनिपुलेट कि कुछ तो भी फिशी है, अगर ये ट्रेन आगे जाती है तो शायद बहुत बड़ा मिसहैप हो सकता है। तो बोले आप जाके चेक करवाइए। एंड टू देयर एस्टोनिशमेंट, जो पहले क्राउड गुस्सा कर रही थी उन पर, चेन का इमरजेंसी जो चेन उन्होंने खींचा, उन्होंने देखा देयर वर क्रैक्स इन द रेल ट्रैक्स। सो दिस इज द लेवल, ही इज सर विश्वेश्वरैया जी, जिनके ऊपर इंजीनियरिंग डे मनाया जाता है। ये लेवल होता है एक इंजीनियर का, उसका इंट्यूशन इतना स्ट्रांग होता है। अब ये तो साइंटिस्ट लोगों की बात हो गई। अब एक ऐसा स्टॉलवॉर्ट जिनके बारे में बहुत कम बोला जाता है, डॉक्टर वेंकटरमन सदानंद जी। ही इज अ पास आउट, बीटेक पास आउट फ्रॉम IIT मद्रास, चेन्नई। और IIT के करने के बाद he had a passion for understanding brain. He went on to become neurosurgeon and pediatric neurosurgeon, and he is an associate professor in Lama University, और उन्होंने अपना MD टोरंटो से किया है। So एक इंजीनियर डॉक्टर बन सकता है, साइंटिस्ट बन सकता है, बॉलीवुड सेलिब्रिटी बन सकता है। अब शंकर महादेवन, है ना, हमने देखा है खो ना जाए ये तारे जमीन पर का जो कंपोजिशन है से लेके एवरीथिंग अंडर द सन, है ना, 3 इडियट्स से लेके सभी, ये लेवल होता है। ही इज आल्सो एन इंजीनियर, राइट। और यहाँ पे जो इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज है, चाहे मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के हो, अमेज़न के जेफ बेजोस जी हो, ये एलॉन मस्क हो, इनका बेसिक अगर बैकग्राउंड देखो, कोई इंजीनियर है। एलॉन मस्क बेसिकली फिजिसिस्ट एंड इकोनॉमिस्ट है, बट इंजीनियर का बेसिक क्या है? PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। सो बाय दैट, इन दैट सेंस ही इज आल्सो एन इंजीनियर। अब अपने बिल गेट्स जी,
जो माइक्रोसॉफ्ट के चीफ मेंटर है, ये ही वाज किक्ड ऑफ, ही वाज नॉट इवन मतलब हैविंग द ग्रेजुएशन before he went on to become that level, he reached that level. So ये level पे लोग होते हैं यहाँ पे. So this is engineer. So you cannot demean engineers. हम लोग इंजीनियर को कुछ भी हम लोग ऐसा बोल नहीं सकते कि कोई तो भी एक चिल्लर प्रोफेशन है. You have to respect your profession. लोग कितना भी मजाक उड़ा दे, आप लोग को पता होना चाहिए कि इंजीनियरिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जो मैंने कहा ना, चपरासी से चीफ मिनिस्टर तक या बॉलीवुड से लेकर आपको द बिगेस्ट क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड जैसे एलॉन मस्क जी है ना, आपको बना सकता है. राइट. सो पहला सवाल आप सभी से, कि ये सारे तो सेलिब्रिटीज हो गए जो आप लोग ने देखा. पहला सवाल आपसे ये है कि क्या आपने शार्क टैंक का नाम सुना है? शार्क टैंक इंडिया. यस सर. बहुत ट्रेंडिंग, बहुत हैपनिंग चीज है जहां पे लोग वेरी वेल आइडियाज प्रेजेंट करते हैं एंड इट इज बीइंग रिवॉर्डेड एंड सोल्ड आउट. सो वहां पे जितने भी पोर्टफोलियो जो लोग हैं, उनका जो प्रोफाइल है, जहां के जजेस है विनीता सिंह, शी सीईओ शुगर कॉस्मेट, आईएम्स अहमदाबाद, है ना, अगन इनका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का भी है. अनुपम मित्तल, सीईओ पीपल ग्रुप, ही इज अगेन पास आउट ऑफ बॉस्टन यूनिवर्सिटी. फिर से आशनीर ग्रोवर जी आईएम्स अहमदाबाद के हैं, है ना, ही इज अ co-founder of Bharat Pay, right? पीयूष बंसल जी, again he is a pass out of IIMs. So ये जो elite class है, इनका background engineering का भी है और IIMs का है. And I am happy to tell you, to our this thing credibility, हमारे कुछ बच्चे हैं जैसे सौरभ, है ना, प्रेम, ये एक्सपर्ट से इसके बच्चे हुए, और जो अभी आईएम से कुछ बच्चे पढ़ रहे, कुछ पास आउट है, एंड दे कुड शेयर देयर स्टेटस एट दिस लेवल. हर्षा भोगले जी को कौन नहीं जानता, उनके साथ एज यू कैन से दिस इज आवर स्टूडेंट, यूट्यूब में इनका क्रेडेंशियल भी आप देख सकते हो, है ना. दिस इज अ क्लासेस एट आईएम्स, द लेवल ऑफ क्लासेस यू कैन सी देयर. सो ये सारी चीज एक इंजीनियर अचीव कर सकता है. बट माई पॉइंट इज, माई वेरी फर्स्ट पॉइंट इज, कि इंजीनियरिंग जो दुनिया को बनाती है, इंजीनियरिंग जो पूरी दुनिया को बनाती है, एक सोफिस्टिकेटेड वर्ल्ड देती है, एक टेक सेवी वर्ल्ड देती है, कंफर्ट जोन देती है. अगर ये नहीं होता तो आपका कुछ इस प्रकार से आलम होता. एंड नाउ यू कैन सी शी इज calculating or she is using her laptop using abacus or bits, है ना. ये वो क्या बोल सकते हैं, वो जो हिस्ट्री में जो हम लोग एप मैन के तरफ हम जाएंगे, उस वक्त का जो सीन सिनेरियो वैसा क्रिएट हो गया. ये अपना कैलकुलेटर यूज कर रहा उस वक्त, जैसे यूजिंग पेबल्स, यूजिंग स्टिक्स काउंट किया जाता है टैली के फॉर्म में, और ये कैलकुलेटर के कैलकुलेशन को सेव कर रहा है. सो ये दुर्दशा हो गई होती, दिस वुड हैव बीन द plight had this world would have been without engineers. So engineering को हम लोग को बहुत सीरियसली लेना है, और लेने के पहले आप लोग को ये पता करना है एज एन इंजीनियर, क्या आप एम्प्लॉयबिलिटी रेडीनेस आपके अंदर है? हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव कि आप लोग एम्प्लॉयबल है? राइट डाउन इन द चैट बॉक्स, यस और नो. आर यू एम्प्लॉयबल? आर यू एम्प्लॉयबल? क्या लगता है, आप लोग एम्प्लॉयबल है या नहीं है? अच्छा, देखते कितने बच्चे क्या लिखते हैं. दिनेश सेज यस आई एम एम्प्लॉयबल. दानिश सिर्फ पूरे इतना बड़ा जो क्राउड है यहाँ पे 65 प्लस का, उसमें सिर्फ 2 ही बच्चे, फयाज यस बोलता है. अच्छा, बाकी बच्चे नो बोलो, इतनी हिम्मत रखो. कैंडिड कन्फेशन के करते हैं, है ना. तुषार से यस सर, यस. पूजा से यस. गौतम से यस. अभी देखो ना, एक ने ट्रेंडिंग हो जाता है यहाँ पे. सो ये जितने बच्चे
यस बोल रहे हैं कुछ बच्चे, कैंडिड कन्फेशन। शाश्वत, आई अप्रिशिएट योर आंसर, नॉट येट। अच्छा एक बात बताइए, आप में से कितने बच्चे ने नेशनल लेवल का कोई एग्जाम दिया? जैसे अभी मैं आईएम्स अहमदाबाद की बात कर रहा था, तो कैट इज अ नेशनल लेवल एग्जाम फॉर गेटिंग एडमिशंस टू प्रीमियम इंस्टीट्यूट लाइक आईएम्स, है ना? किसी ने नेशनल लेवल का एग्जाम दिया है? दिया है तो कौन सा एग्जाम दिया आप लोग ने? कोई एग्जाम जो आपने आज तक के दिया है नेशनल लेवल का, अपने करियर के हिसाब से, अपने प्रोफेशन को चुनने के हिसाब से? जैसे आप तो चुन चुके हो इंजीनियर, हाँ तो लिखिए ना कौन सा एग्जाम दिया है, नेम 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 लिखिए, उसका नाम लिखिए। तो पहला सवाल था, क्या आप एम्प्लॉयबिलिटी रेडीनेस आपके अंदर है? सर कंप्लीशन खेली है, कंपटीशन खेली है। अच्छा कंपटीशन खेली है। ओके, मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव पास्ड सम एंट्रेंस एग्जाम ना, ताकि आप यहाँ पे आए या इंजीनियरिंग कॉलेज में आए। कौन सा एग्जाम आपने पास किया है ऑल इंडिया लेवल का? आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर कमेंट्स। जेई, सीटी, दानिश से सीटी, उस्मा से जेई, है ना? और जेई मेंस, अच्छा नीट एंड कुछ बच्चों ने नीट भी दिया, इंजीनियर्स, है ना, टू बी डॉक्टर्स, एमएचटी सीटी, डायरेक्ट सेकंड ईयर पे आया। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। सो आप लोग, अगर आप मानते हैं कि आप एम्प्लॉयबिलिटी रेडीनेस आपके अंदर है, देखिए तो मैं सबसे पहला इसको चेक करके दिखाऊंगा। पहला सवाल का आंसर आप लोग से निकलवा के दिखाते हैं। मैं अभी एक बच्चे को, किसी एक बच्चे को बोलना चाहूंगा, आई वॉन्ट वन ऑफ द स्टूडेंट टू कम ऑन स्क्रीन and brief himself or herself in just 2 minutes in a very flawless style or communication or flawless English. So any one of you, खास करके जिन बच्चों ने बोला yes sir we are employable, just 2 minutes of branding. There are 2 minutes of branding, endorsing yourself, promoting yourself, है ना, presenting yourself. So 2 मिनट में कोई अपना इंट्रोडक्शन देके दिखाया। Your time starts now. जो देना चाहता है वो कमेंट्स में लिखिए यस सर आई वांट टू गिव दैट, और अपना वीडियो और ऑडियो ऑन करे एंड स्टार्ट ऑफ। आई एम वेटिंग। यस, सभी तो बोल रहे थे हम, मैक्सिमम मोस्ट ऑफ यू हैव सेड कि हम लोग के अंदर एम्प्लॉयबिलिटी रेडीनेस है। सो लेट मी चेक आउट। यस, एम्प्लॉयबिलिटी रेडीनेस है। तो मैं किससे पूछता हूं? किसी बच्चे ने लिखा है यहाँ पे एनडीए, यहाँ पे कुछ बच्चों ने लिखा था ना कि हम लोग को यस, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। फयाज, आपने लिखा था यस करके, मुझे याद आ रहा है। दानिश, तुषार, ये सब नाम दिख रहे हैं, पूजा, गौतम, मतलब एक, हाँ किसी ने लिखा है, अभी एक बच्चे ने लिखा है सर देना चाहता हूं पर मैं हॉस्पिटल में हूं। See, there may be thousands of reasons. I understand. May God bless you बेटा, है ना, कोई बात नहीं है। लेकिन जो दे सकता है, जो पोजीशन पे है, वो तो दे सकता है। कि मैं अज्यूम कर लूं पूरी क्लास में 2 मिनट का सिर्फ इंट्रोडक्शन हमको नहीं जम रहा है और हम एम्प्लॉयबिलिटी रेडीनेस की बात कर रहे हैं। यस सर, आई विल। फयाज, गो अहेड, पुट ऑन योर कैमरा, be on video and start off your presentation. Irrespective of your confidence, कि आप किस कॉन्फिडेंस के साथ देते हो, किस कंटेंट के साथ देते हो, कम से कम एक बार आप पिक्चर में तो आए, नॉट कैमरा। दिस इज नॉट डन। आप थोड़ी ना बोलोगे सर इंटरव्यूअर्स को, सर एक पर्दा लगा लेते हैं और बात करते हैं, मेरी आवाज ही आपको बहुत मधुर लगेगी। सर मैं ठीक हूं, थैंक्स फॉर द फॉरवर्ड का इंटरव्यू है। अच्छा, Okay, sir, I am going to give. ओके, शाश्वत दास, could you please come on screen? Good morning, sir. Good morning, शाश्वत। Sir, can I start?
Yes, go ahead. Myself, Shashwat Das, and I have done my 10th from KVVSN, and I have also done diploma from Government Polytechnic, Nagpur. Right now, I am pursuing my engineering from Anjuman College of Engineering Technology, and I am looking forward for my master's. That's all. That's all. अच्छा शाश्वत, आपने 2 मिनट का इंट्रोडक्शन दिया, इसमें मैं यही नहीं समझा कि शाश्वत ये तो सब क्वालिफिकेशन के बारे में बोला, ये पन्नों की बात हो रही है, यहाँ सब पन्नों की बात हो रही है, राइट? मैं ये नहीं समझा एज अ पर्सन शाश्वत क्या है. आर यू अ वेरी कॉन्फिडेंट एंड वेरी बैलेंस्ड पर्सन? आप आर यू अ पर्सन हु इज फुल ऑफ क्रिएटिविटी और अ वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन? मैं कुछ समझ ही नहीं पाया. सो आपको लगता है आपका इंट्रोडक्शन अप टू द मार्क है? No, sir. हाँ, कैंडिड कन्फेशन. और कोई देखो शाश्वत, लेकिन एक एप्रिसिएशन की बात मैं आपको बताता हूं. इतनी बड़ी भीड़ में शाश्वत एक ऐसा लड़का है who has this audacity or boldness to come on screen and speak up. मतलब वो जॉबेबल है, एम्प्लॉयबल है. ये मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूं. बाकी लोग नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते. बाकी लोग पिक्चर भी नहीं आए तो उनका असेसमेंट कहां से होगा? भाई मैदान जंग में उतरना तो पड़ेगा, बाद में डिसाइड होगा हार या जीत. सो मैदान जंग में शाश्वत उतरा. वेरी गुड शाश्वत, अ क्लैप फॉर यू. सो बेसिकली एम्प्लॉयबिलिटी रेडीनेस की हम लोग बात करेंगे, बट एम्प्लॉयबिलिटी रेडीनेस की बात करने से पहले हम लोग ये जो लाइफ में इतना कुछ जो सोचते हैं, करते हैं, इसके पीछे एक सपना होता है. और ये सपना जो है ये किस चीज का होता है ना? वैसे तो आप लोग सपने के दायरे में इंजीनियरिंग कर चुके हैं, जैसे कि आप लोगों ने लिखा इंजीनियरिंग, है ना? लेकिन इंजीनियरिंग की दास्तां भी ऐसी है कि किताबें खुली हो या हो बंद, किताबें खुली हो या हो बंद, है ना? पढ़ाई तो लास्ट नाइट ही होती है. कैसे कहूं मैं ओ यारा, इंजीनियरिंग तो ऐसे ही होती है. लेकिन इंजीनियरिंग के वक्त हम लोग ड्रीम्स बहुत अच्छे अच्छे देखते हैं, है ना? चांद तारे तोड़ लाऊं, जैसे मैंने बोला, सारी दुनिया पर मैं छाऊं, बस इतना सा ख्वाब. सो बेसिकली द फर्स्ट स्टेप दैट एज एन इंजीनियर यू डू इज कि हम लोग को सपना दिखाया जाता है, हम सपना देखते हैं. जस्ट गिव मी अ मिनट. वेल, हाँ, जस्ट अ मिनट. Let me erase all this. Okay. So my dear students, पहला आपका सपना जो होता है वो पैसा होता है. You want to earn money. आप लोग एक पैकेज देखते हो, एक सीटीसी देखते हो, एक एलपीए देखते हो, लैक्स पर एनम, कॉस्ट टू कंपनी देखते हो कि मेरा 12 लाख 6 लाख का पैकेज का एक जॉब लगे. आप लोग सपने में स्टेटस देखना चाहते हो कि किस लेवल की कंपनी से आप जोड़ रहे हो, मल्टीनेशनल कंपनी, इंटरनेशनल, नेशनल लेवल की कंपनी, कैसे कंपनी के साथ जोड़ रहे हो. आप एक घर चाहते हो. आप घर के अलावा आप क्या चाहते हो? खुशी चाहते हो. आप क्या चाहते हो? है ना, कार चाहते हो, है ना, घर बंगला कार. आप शांति चाहते हो, है ना, शांति चाहते हो. और द बेस्ट पार्ट इज आप एक बहुत सुंदर लाइफ पार्टनर चाहते हो. सो ये सारे आपके ड्रीम्स के पार्ट है. दिस इज व्हाट मेक्स यू ड्राइव्स यू फॉर डूइंग से वन ऑफ द प्रोफेशन दैट इज इंजीनियरिंग. और हो सकता है कोई सीए करेगा, कोई डॉक्टर करेगा, बट बेसिक आइडिया इसके पीछे ये होता है सबका, राइट? अगर ये हमारा बेसिक आइडिया है तो हम लोग को इस बेसिक आइडिया में अगर आप देखोगे गौर से, इस सारे में ये वाला पैरामीटर हम लोग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है. दैट इज what we say is success. और ये सक्सेस को अचीव करने के लिए आज हमारा सेशन यहां से शुरू होगा. एम्प्लॉयबिलिटी रेडीनेस. सबसे पहले एम्प्लॉयबिलिटी रेडीनेस का बेसिक क्राइटेरिया है कि क्या आप इस पोजीशन पे हो कि आप अपना करियर प्लान कर सकते हो. और अगर नहीं हो तो आज का ये सेशन आपको मदद करेगा करियर प्लान करने में. और ये करियर प्लान करने में द बेसिक इंग्रेडिएंट्स इज एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड. जैसे कि आप जानते हैं एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड में स्पेलिंग डिफरेंस तो है, लेकिन उसके अलावा ये आपका इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी चेक करता है. बोले तो मेंटल एबिलिटी, है ना? कोई भी एंट्रेंस एग्जाम ले लो, वहां पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, है ना, एवरेज मिक्सचर एलिगेशंस, परसेंटेजेस, रीजनिंग, है ना, जो कॉमन सेंस वाला मैथ्स होता है, वो सब जनरली पूछा जाता है. और एटीट्यूड इज लाइक योर कम्युनिकेशन स्किल व्हिच इज बीइंग चेड, योर लाइफ स्किल्स, योर करियर स्किल्स
are being checked, that is through attitude. So basically these are the two ingredients. Now the facts and figures that we must know before we plan our career. अगर आप लोग देखोगे कि 2018 से 2021 जो कि कोरोना काल है, जो अभी भी चल रहा है, shortly it will be over by 2 months. So 1.6 million 2018 में लोग पास आउट है. 1 million is equal to, as you know, 10 lakhs. यहाँ पे आप देख सकते हो कितने बच्चे पास हुए, है ना, 2.1 million. 2020 में कोरोना काल जहां से शुरू 3.1 million. There is a whooping, drastic improvement in this. 2021 में करीब करीब 40 लाख लोग ग्रेजुएट हुए. मेरा एक सवाल आप लोग से ये है कि 40 लाख लोग ग्रेजुएट होते हैं इंडिया से 2021 तक, परहैप्स 2022 तक, ये मेरा आंकलन स्पेक्यूलेशन है, शायद ये 40 का 50 या 55 तक चले जाए, क्योंकि आजकल ग्रेजुएशंस तो ऑनलाइन या डिस्टेंस एजुकेशन से, बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से, वर्चुअल स्कूलिंग और लर्निंग की वजह से आजकल डिग्री हासिल करना बड़ा आसान हो गया, कोई भी हासिल कर सकता है, शायद ये 55 लाख तक चले जाए. मेरा सवाल है 40 लाख अगर हम कंसिडर करते से लोग ग्रेजुएट हो रहे हर साल, जैसे आप हो रहे हैं, बीकॉम, बीएससी, है ना, सीएस, एमबीबीएस सभी हो रहे हैं, एलएलबी वाले, बीबीए वाले, तो क्या इतने लोगों के लिए जॉब है भारत में, जो 135 प्लस करोड़ की जनता है ना? क्या यहाँ पे इतने कॉर्पोरेट बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट्स या कंपनीज है? क्या आपको लगता है यहाँ पे जॉब है? राइट डाउन यस, से नो, कांट प्रेडिक्ट, कांट स्पेकुलेट. लिखो क्या लिखना चाहते हो. आपको लगता है इन सारे लोगों के लिए जॉब है? नो. जब मैंने एम्प्लॉयबिलिटी रेडीनेस बोला था सब यस बोल रहे थे, अभी सब नो बोलते हैं. पूजा सेज नो, दानिश यस. क्रिएट कर सकते हैं, क्या बात है तुषार. मैं तो तुम्हारे पास ही जॉब, बच्चों को अभी मैं प्लेसमेंट करवाता हूँ, मैं तुम्हारे पास ही लेके आऊंगा अभी. वेल बच्चों, द आंसर इज अ बिग यस. अरे ऐसी कौन सी कंपनी नहीं है जो इंडिया में जिसका यूनिट नहीं है, चाहे वो गूगल हो, अमेजन हो, है ना, माइक्रोसॉफ्ट हो, डेलॉयट हो, एक्सेंचर हो, है ना. हमारे इन हाउस तो है, इन्फोसिस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, विप्रो, ये सब तो है, लेकिन सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट्स हैं, बड़े बड़े नेशनल, मल्टीनेशनल, इंटरनेशनल कंपनीज अपने भारत में है. और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, वहां पे लाखों में जॉब है, इतना कि ये 40 लाख लोग को भी केटर करना कोई बड़ी बात नहीं है. लेकिन हम 2 मिनट अपना इंट्रोडक्शन देने में इतना जो हिचकिचाते हैं, तो हमारे अंदर वो कौशल्य, वो स्किल है कि उस जॉब को लेके दिखाए. अगर नहीं है तो कन्फेशन कीजिए, हाँ सर नहीं है, उसको हम लोग डेवलप करेंगे इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम. आपका जो ऑल्मा मैटर है, अंजुमन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, मैं कॉन्फिडेंट हूं वो बखूबी अपना रोल निभा रहा है. हम एक्सपर्ट सेज अपना रोल निभाएंगे जब भी मौका मिलेगा. हम लोग बच्चों को उस लेवल पे ट्रेन कर रहे हैं और जहां पे वो एम्प्लॉयबल हो जाए, जॉबेबल हो जाए. भारत में ये 40 लाख लोग में से सिर्फ 8%, वो भी मैक्सिमम लोग जॉबेबल है. 8% का मतलब समझते हो, 4 8 32, 3.2 lakhs फ्रीज जॉबेबल है, बाकी सब के सब they are not employable. This is the plight of our Indian graduation, right? और पोस्ट ग्रेजुएशन पहुंचते पहुंचते कुछ एक मुश्किल से 12.5% तक लोग पहुंच जाते हैं इसमें, है ना, मेरे हिसाब से, right? So career planning is a big word. People use it quite often, but they don't tell how. So how to plan this? सबसे पहले खुद के बारे में जानो. स्पिरिचुअली बोला जाएगा तो ध्यान, मेडिटेशन, इबादत, जो भी आप कर सकते हो करोगे. दिस इज वन एस्पेक्ट परहैप्स. लेकिन सेल्फ अवेयरनेस के कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट्स हैं. क्या आप ये सवाल पूछते हो अपने आप को, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन एम आई, मैं कैसा पर्सन हूं, व्हाट इज माय प्रेफर्ड लर्निंग स्टाइल, मैं किस चीज से जल्दी समझता हूं, पर्सनलाइज्ड ट्रेनिंग, 1-to-1 ट्रेनिंग काउंसलिंग से जल्दी समझता हूं, एक क्रिएटिव बैच में समझता हूं, या एवरेज बच्चों के बीच में मैं हीरो बन के जल्दी समझता हूं. मेरा लर्निंग स्टाइल क्या है, टीचर किस लेवल का आपको चाहिए, राइट? सिंप्लीफाइड वाला करना, डेप्थ में पढ़ाने वाला, ऊपर से शॉर्टकट बताने वाला, दिस इज योर प्रेफर्ड लर्निंग स्टाइल. हाउ डू आई वर्क विद अदर पीपल, आपके पीपल स्किल कैसे है, हाउ कंपैटिबल आर यू व्हाइल वर्किंग विद
people from all walks of life. अलग अलग लोग हैं, एक चपरासी से भी डील करना पड़ रहा है, हायर जो आपके ऑथोरिटीज हैं उनसे भी डील करना पड़ रहा है, अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ डील करना पड़ रहा है. व्हाट इज माय टेम्परामेंट? क्या बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है ना? अभी मैंने थोड़ा सा अगर किसी के ऊपर हंसा, है ना, तो आपको लगेगा अरे सर तो हमारा उड़ा रहे हैं, लेकिन क्या आपका टेम्परामेंट ऐसा हो सकता है, ही इज पिंगिंग मी, ही इज पिनिंग मी, ही इज पोकिंग मी जस्ट to get the best out of me. आपका टेम्परामेंट क्या? How do you react? Are you a short tempered? Are you a happy go lucky person? आप बहुत calm and balanced हो, tranquil हो, दुनिया में तूफान आए, कयामत आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपना खाना खा के मस्त सो सकते हो. What is your temperament? This will make you understand to what extent you are aware of yourself. So you generate those qualities. Now opportunities. Opportunities एक बहुत बड़ी चीज होती है. आपके पास जब तक कि आप अपने कैपेबिलिटीज को नहीं जानोगे, नो योर कैपेबिलिटीज, आपकी जो क्वालिटीज उसको नहीं जानोगे, तो आप अपॉर्चुनिटी को मैप कैसे करोगे, है ना? आप जरूर कोई तो भी XY ट्रेड इंजीनियरिंग कर रहे हो, लेकिन वन फाइन डे यू रियलाइज यू हैव गॉट दैट लीडरशिप स्किल या HR ह्यूमन को डील करने की स्किल आपके अंदर है, तो आप HR के बारे में सोच सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स. आप बहुत अच्छा बेच सकते हो, आप बहुत अच्छा कन्विंस कर सकते हो, शायद आप लॉयर बन सकते हो, या फिर आप मार्केटिंग एंड सेल्स के एक बहुत बड़े प्रोफाइल में आप जा सकते हो, राइट? उसके लिए आप अभी गेट नहीं दोगे, फिर आप कैड दोगे, या जमनालाल बजाज में जाना है तो CT दोगे, है ना? सो दिस इज हाउ यू और यू चूज योर प्रोफाइल from the campus interview. So basically there are n number of opportunities. Data analytics है, data science है, mechatronics, artificial intelligence, जो happening चीज है आजकल, तो मैनेजमेंट combined with artificial intelligence आ गया, है ना? सो वो एक नया कॉम्बिनेशन है. इन्वेस्टमेंट बैंकिंग आजकल बहुत हैपनिंग है, जिसमें काफी इंजीनियर सेंटर हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स. सो फिर दुनिया भर के जो FMCG, फार्मेसी, जो अलग अलग इंडस्ट्री है, सो ये सारे के बारे में आपको पता चाहिए. और पता होने के लिए मैं आप लोग को इधर आई वुड लव टू मेंशन समथिंग ओवर हियर, कि हमारे पास एक यूनिट है एक्सपेक्ट्रॉन्स, है ना? ये एक्सपेक्ट्रॉन्स जिसमें 3,500 कंपनीज है. वो कंपनी का मैं आपको एक ओवरव्यू भी देने वाला हूं. बिफोर दैट लेट मी मूव अहेड फर्स्ट, है ना? अगर आप देखोगे कि मैंने अभी तक 2 चीज के बारे में बात की. क्या क्या चीज? सेल्फ अवेयरनेस एंड अपॉर्चुनिटी अवेयरनेस. डिसीजन मेकिंग एक बहुत बड़ी चीज मानी जाती है. डिसीजन मेकिंग के लिए आप लोग को ये सवाल का थोड़ा जवाब देना पड़ेगा. व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आर यू? टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4. क्या आप ऐसे व्यक्ति हो जो अपने डिग्री से संबंधित कुछ करना चाहता है? यू वांट टू डू समथिंग रिलेवेंट टू योर डिग्री. अगर मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं से, तो मैं किर्लोस्कर में जाना चाहूंगा, महिंद्रा में जाना चाहूंगा, है ना, जहां पे डिजाइन यूनिट है ना, प्रोडक्शन यूनिट है. मैं शायद जहां पे वर्कशॉप है उसमें काम करना चाहूंगा. सो मेरी डिग्री से रिलेटेड मैं कुछ काम करना चाहूंगा. क्या आप इस कैटेगरी में हो? कोर जिसको बोलते हैं हम लोग फील्ड. या फिर हमारा जो इंटरेस्ट एंड स्किल है, अभी शंकर महादेवन जी, जहां तक कि मुझे पता है, इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, लेकिन ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्टॉलवर्ट दैट इंडस्ट्री बॉलीवुड इंडस्ट्री हैज क्रिएटेड. तो उनका पैशन जो है वो म्यूजिक था, एंड ही मेड करियर इन दैट. परहैप्स आपका पैशन होगा कि आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, आप अपना खुद का कुछ बिजनेस यूनिट डालना चाहते हो, और आपने कर लिया गलती से कोई तो भी XYZ इंजीनियरिंग, तो आप क्या करोगे? क्या आप इंटरेस्ट एंड स्किल को प्रेफर कर? तीसरा, आई वांट टू गो फॉर फर्दर स्टडी. मैं हायर स्टडी MBA करना चाहता हूं, मैं MS करना चाहता हूं USA की यूनिवर्सिटी या यूरोपियन यूनिवर्सिटी से, मैं MTech करना चाहता हूं. मैं करना क्या चाहता हूं? ये हायर स्टडी के लिए जाना चाहता हूं, मुझे जॉब नहीं चाहिए अभी फिलहाल. I want to pursue my study. या फिर आप चाहते हो कि how else I can find about opportunities. I'm yet to explore, lot of things. मैं अभी भी exploring stage में हूं. मुझे देखना है, जानना है, मुझे करना क्या है. What category you fall into? Type 1, type 2, type 3, type 4. Write down. Type 2, type 4. साहिल टाइप 2, 2 and 3. कुछ बच्चे 2 and 3 भी है. अच्छा, और
आज आप लोग को एक लाइव एग्जांपल मिलेगा कि कितना आप लोग को स्किल्स को होन करना है, एक्सप्लोर करना है, होन करना है उस एक्सटेंट में कि यू बिकम कॉन्फिडेंट व्हाट यू से। मैं पूछ रहा था ऑल इंडिया लेवल के एग्जाम्स और कुछ बच्चे लिख रहे थे सीईटी। ओके, ऑल टीज alt is not taken. You have to be very specific. So basically I have seen कि मेरा जो डिसीजन मेकिंग है वो डिपेंड करेगा मेरे मटेरियल रिवॉर्ड्स क्या है। मैं कौन सा सीटीसी में खुश हूं, क्या मैं एक एवरेज 4 लाख पर एनम के सीटीसी में खुश हूं, या 6 लाख पर एनम, या 12 लाख, या 24 लाख, या उससे भी ऊपर। मेरा पावर एंड इन्फ्लुएंस क्या है वो भी जानना है। अभी हाल ही में वन ऑफ माय सिस्टर गॉट सिलेक्टेड इन डॉक्टर रेड्डीज, उसका पैकेज 18 लाख का है। और हाल ही जब मैं उससे मिला, उसके कुछ दिन पहले उसका जन्मदिन था, तो डॉक्टर रेड्डीज ने आप क्या किस लेवल पे लोगों को ये करता है, पावर एंड स्टेटस बोथ गो हैंड इन हैंड। तो उस बच्ची को जन्मदिन में एक 15,000 टोकन ऑफ एक गिफ्ट भेजा और एक आईफोन भेजा। So this is the level, this is the status that you achieve. ये प्रोबेबली कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी करेगी, आई डाउट, लेकिन कॉर्पोरेट इस लेवल पे करती है कि बर्थडे में आपको 15,000 टोकन अमाउंट, अपना भी कोई नहीं देता, और आपको एक आईफोन दे दिया। सो दिस इज द काइंड ऑफ स्टेटस यू गेट व्हेन यू गेट टू वर्क विद बिग कॉन्ग्लोमरेट्स। सो व्हाट काइंड ऑफ लर्निंग दैट यू गेट, सिर्फ जॉब अच्छा है, सीटीसी अच्छा है, लेकिन क्या आपको प्रोफाइल से आपको उससे सीखना है, सीख के आगे बढ़ जाना है, क्या एक्सपर्टीज आपको उसमें गेन करना है, ताकि आपका जो लॉन्ग टर्म जो ड्रीम है, और कहां से इसके एफिलिएशंस है। एफिलिएशंस परहैप्स इज रिलेटेड टू एलुमनाई, राइट। जैसे हमारे बहुत सारे बच्चे जो आईएम्स, जैसे मैंने अभी बताया सौरभ के बारे में, प्रेम के बारे में, आईएम्स अहमदाबाद के हैं। ये एलुमनाई जब स्ट्रांग होता है तो कोई आपको गिरने नहीं देता, क्योंकि आप जहां पे गिरने जाओगे तो ये मेंटर सामने आ जाएंगे और आपको पिकअप कर ही लेंगे। दिस इज द ब्यूटी ऑफ प्रीमियर एस्टीम्ड स्कूल्स और कॉलेजेस अक्रॉस इंडिया, राइट। सो बेसिकली करियर रोड मैप में आपको सबसे पहले जो मैंने शुरुआत किया, आप 2 मिनट अपने आप को ब्रांड नहीं कर पाए, तो आपको सबसे पहले तो अपने इंटरपर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन और सॉफ्ट स्किल्स में वर्कआउट करना पड़ेगा, उतना जिससे आप सेल आउट हो जाए इंटरव्यू में या कोई प्रोजेक्ट में या कोई इंटर्नशिप में। फिर आपको एक बार ये आने के बाद यू शुड नो कि आप लिंक्डइन में आप कैसे दिख रहे हो, व्हाट इज योर प्रेजेंस इन लिंक्डइन, आपका वीडियो प्रोफाइल कैसा है, अगर आपने कभी वीडियो प्रोफाइल के बारे में सुना होगा अपना, है ना, आपका सोशल मीडिया प्रेजेंस और आपके क्रेडेंशियल्स क्या है, जो एकेडमिक क्रेडेंशियल्स है या फिर नॉन एकेडमिक क्रेडेंशियल्स क्या है, आपने कहाँ इंटर्नशिप किया है, आपके स्किल सेट क्या है, आप अपने आपको ब्रांडिंग कैसे करते हो। और सबसे बड़ी बात है गाइडेंस। आई सिंपली यूज दिस वर्ड मेंटरिंग। हमारे यहाँ पे एक्सपर्ट एज में 1-to-1 मेंटरिंग डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी ऑफ द स्टूडेंट हम लोग देते हैं। एंड फाइनली द बेस्ट पार्ट इज द ट्रेनिंग, जो कि मैं अभी आपको देने वाला हूं। चंद 15 मिनट में आप लोग का एप्टीट्यूड का लेवल टू सम एक्सटेंट बढ़ा के दिखाता हूं, सो दैट यू गेट टू अंडरस्टैंड कि इसको ग्रूम किया जा सकता है एप्टीट्यूड को। एप्टीट्यूड वुड रादर टेक सम टाइम। नाउ एक स्किल जिसको मैं पीपल स्किल बोलता हूं, वो कितना इंपॉर्टेंट है। आप कभी भी कोई भी कंपनी में जब जाओगे, कोई वेबसाइट में जाओगे, तो आप लोग को जैसे जोमैटो को मेरे ख्याल से हर बच्चा जानता है ना, पीपल नो इट व्हाट इज जोमैटो, है ना, ऑल आर फूडीज दिस डेज, है ना, सबको खाना पसंद है, किसको नहीं पसंद बताओ, है ना। एक हाथ थोड़ा सा जो स्पिरिचुअली बहुत डेवलप्ड सोल है, शायद वो खाने से परहेज करता होगा, बाकी तो हम लोग दबा के खाते हैं। ये जोमैटो जो है ये सबको पता है, और इसमें जनरली कोई भी कंपनीज में करियर्स करके जो लिंक होता है, उसमें क्लिक करने के बाद ये पेज ओपन होता है ना। ये जो पेज ओपन होता है, टू योर एस्टॉनिशमेंट, अभी आप लोग क्या बोल रहे थे कि जॉब नहीं है, क्रिएट करना पड़ेगा, और यहाँ पे ऐसा सीन आ गया है, जॉब सिनेरियो पोस्ट कोविड तो और ज्यादा अच्छा हो गया कि लोग आपको घर से ढूंढ के भी जॉब दे सकते हैं, आपको फोन आ सकता है। इसको बोलते हैं रेफरल जॉब्स। कैसे? वी डोंट एक्सेप्ट जॉब एप्लीकेशंस। जोमैटो इज सेइंग इट्स अ बिग थिंग नाउ, वी ओनली टेक एप्लीकेशंस थ्रू एम्प्लॉय रेफरल्स। जो वहां पे काम कर रहे हैं वो रेफर करते हैं। इफ यू नो समवन एट जोमैटो, रीच आउट टू देम एंड शेयर एन आई कैची एप्लीकेशन विद अ ब्रीफ वीडियो इफ यू हैव इट, maybe or may not be. Now otherwise if you have what it takes, we will find you. हम तुमको ढूंढ लेंगे, तुमको हमारे पास आने की भी जरूरत नहीं है। This is the level of employability
और एम्प्लॉयमेंट, करंटली द सिनेरियो ऑफ एम्प्लॉयमेंट अक्रॉस इंडिया, ये लेवल पे आ गया है जॉब। तो अगर आप में हुनर है ना, अरे किसी ने खूब कहा है ना, सो अर्ज किया है, परिंदों को उनकी मंजिल मिलेगी, परिंदों को उनकी मंजिल मिलेगी, ये यकीनन उनके फैले हुए पर बोलते हैं। परिंदों को उनकी मंजिल मिलेगी, ये यकीनन उनके फैले हुए पर बोलते हैं। खामोश रहते जमाने में अक्सर जिनके हुनर बोलते हैं। तो अगर आपका हुनर बोलता है तो आपको लोग ढूंढेंगे, ढूंढ के ऑफर करेंगे। ये कोई रीजन ही नहीं है इतना बड़ा 135 प्लस करोड़ की जनता में जॉब नहीं है। हम किसी को दोष नहीं दे सकते। द प्रॉब्लम लाइज हियर, लेट अस रेक्टिफाई दिस, है ना, लेट अस वर्क अपॉन दिस। सो नाउ लेट मी कम डाउन टू द पॉइंट। I initially told you कि basically aptitude and attitude से आपका ये बनता है, क्या बोलते हैं, करियर प्लानिंग होता है, इंग्रेडिएंट्स है, बेसिक इंग्रेडिएंट्स है। वैदिक मैथ्स एंड रीजनिंग फॉर्म्स द बेसिस ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द सब्जेक्ट अक्रॉस, बिकॉज कहीं मैंने पढ़ा था, मैथ्स इज द लैंग्वेज विथ विच द गॉड ऑलमाइटी, खुदा, भगवान जो गॉड हैज रिटन दिस यूनिवर्स। मतलब मैथमेटिक्स के लैंग्वेज से यूनिवर्स को लिखा गया। 0-1 से इस पूरे यूनिवर्स को डिकोड कोडिंग का ऊपर एक्सपेरिमेंट शुरू हो गया। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज वैदिक मैथमेटिक्स। नाउ ये हमारी धरोहर है, और ये वैदिक मैथमेटिक्स और रीजनिंग से आपका एप्टीट्यूड कितना अच्छा हो जाएगा वो देखते हैं। हम लोग 2 स्टेज से गुजरते हैं करियर में, एक एंट्रेंस एग्जाम और एक हमारा ये जो पर्सनालिटी स्किल के लिए GDPI, और जो भी उन लोग वहां पे जैसे गूगल में सिलेक्ट होने के बाद 4 स्टेज के बाद और एक स्टेज रहता है गूगलीनेस राउंड। आपको पता है गूगल में एक राउंड होता है गूगलीनेस। अब ये गूगलीनेस का मतलब क्या होता है, इसमें आपको एज अ पर्सन चेक किया जाता है। सी द ब्यूटी, आप एज अ पर्सन कैसे व्यक्ति हो, इसको भी चेक किया जाता है ना। नाउ यू अंडरस्टैंड, वेरी सुंदर पिचाई सर, राइट। नाउ क्या आप लोग सभी ये 4 से 5 सेकंड्स में या 5 से 10 सेकंड में क्या ये सारे के आंसर दे सकते हो? बीइंग एन इंजीनियर यू यूज कैलसी, है ना, यू यूज कैलकुलेशन के पर्पस के लिए अपना खुद का मैकेनिकल वाला सिस्टम। क्या आप लोग ये सारे कैलकुलेशन को 10-10 सेकंड में कर सकते हैं? यस और नो? पहले का आंसर क्या है? वेल, सो द मैजिक लाइज ओवर हियर। अभी हम लोग चंद 15 मिनट के लिए एक एप्टीट्यूड के ऊपर हम लोग रीजनिंग एंड एज कमिटेड एजेंडा में हमारे मैम ने भी कहा था, है ना, ये वाला कैलकुलेशन सिर्फ 2 से 4 सेकंड में कैसा आता आप देखिए। वैदिक मैथ्स में एक सूत्र है सबट्रैक्शन का। सूत्र मतलब फॉर्मूला, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10, इस मेथड से सबट्रैक्ट किया जाता है। अभी 426 into 99, इसमें से सिर्फ माइनस कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा। आपको एक काम करते, हम एक फ्रेश बोर्ड लेते, 426 into 999, तो इसमें फर्स्ट स्टेज में इसको माइनस कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 425। और मैंने अभी एक सूत्र बताया वैदिक मैथ्स का, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10, निखिलम करके कुछ बोला जाता है, इससे हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हम लोग सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे बॉस? ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10, सो 9 में से 4 गया 5, 9 में से 2 गया 7 और ये 6, तो आपका आंसर आ गया 425 574। सही आंसर है, राइट? सो इट टुक हाउ मच टाइम? से हार्डली 10 सेकेंड्स, राइट? नाउ इफ यू सी स्क्वायर रूट वाला फंडा, अब ये स्क्वायर रूट नॉर्मल हम लोग स्क्वायर रूट 25 का तो आसानी से निकालता है, निकाला जा सकता है ऐसा करके, लेकिन इतना बड़ा स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या फंडा होगा? अगर आप देखोगे, है ना, दिस इज व्हाट द एक्सपर्ट्स गिव द एज। नाउ यहाँ पे 11 into 11 सबको पता है, क्या आंसर आता है? 121। अगर आप गौर से देखोगे, विजिबल नहीं है, ओके, 11 into 11 जो है वो क्या होता है? 11 into 11 is 121. Agreed? Let me erase the whole ink and let me start off with new one. 11 into 11 is 121. So आपने क्या देखा?
कि बेसिकली ये देखा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, 1 प्लस 1, यहाँ पे 1 प्लस 1 2, दिस इज 121, दिस इज हाउ वी गॉट, है ना। फिर 1 1 1 इंटू 1 1 1 करोगे तो इसमें भी वही फंडा है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, राइट। 1 प्लस 1 2, देन 1 प्लस 1 प्लस 1 3, देन 1 प्लस 1 2, है ना। सो दिस इज 1 2 3 2 1। सो आपको नहीं लगता जो हमारा स्क्वायर रूट है इतना बड़ा वाला 1 2 3 4 5 4 3 2 1, इसका आंसर निकालना आसान है। जब बीच में 2 था तो 2 1, है ना, 11 इज द आंसर। बट बीच में जब 3 था तो 111 इज द आंसर। जब बीच में 5 होगा तो इसका आंसर क्या होगा, 5 बार 1। सो इसका आंसर विद इन नो टाइम 5 बार 1 होगा, राइट। अब ये रिमाइंडर निकालना है, तो बचपन में आप लोग रिमाइंडर के लिए क्या करते थे, बड़ा सा ऐसा लिखते थे, है ना, ये पूरा 3 4 9 5 2 1 7, और यहाँ पे 9 से डिवाइड करने के बाद एक प्रोसेस करते थे और फाइनली आपका रिमाइंडर आता था। इसमें एक फंडा बोलता है वैदिक मैथ्स कि कैंसल आउट ऑल 9s एंड सम टोटल ऑफ 9s। सो ये 9 को कैंसिल किए, 5 प्लस 4 9, 7 प्लस 2 9, तो बच क्या गया 3 प्लस 1, सो 3 प्लस 1 आंसर इज 4, द रिमाइंडर इज 4, राइट। Now similarly 96 into 96 would hardly take, hardly take 5 seconds to understand 96 into 96। इसका बेस कौन है, बेस मतलब नियरेस्ट जो 10 raised to n फॉर्म में 100 है, ये 100 से कितने दूरी पे है, -4, इसका आप स्क्वायर कर दो तो लास्ट 2 डिजिट मिल जाएगा 16, और इसी को इसमें से माइनस कर दो तो आ जाएगा 94, सो 9416 इज द आंसर। सो दिस इज हाउ you get the glimpse कि एप्टीट्यूड किस लेवल पे होना चाहिए, मेंटल कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए, जो कि इंजीनियरिंग में और भविष्य में जितने भी एग्जाम है, बड़े एग्जाम्स, सब में काम होता है। चाहे वो डिफेंस का एग्जाम हो, कैट का एग्जाम हो, सीईटी का एग्जाम हो, या कोई कॉर्पोरेट लेवल का एग्जाम है, एनक्यूटी हो, है ना, टाटा का, या फिर लिटमस हो, कोक्यूब्स हो, सब में काम आएगा। नाउ लेट अस हैव अ ग्लिम्स ऑफ एप्टीट्यूड इन अ नटशेल, है ना, विद रिस्पेक्ट टू वैदिक मैथ्स। 99999 से कोई भी नंबर को आप 999 कितने भी 9 से मल्टीप्लाई कर लो, बड़ा आसान तरीका है। तो पहला वाला तो मैं बता चुका हूं, इसका आंसर क्या होगा, पहले का आंसर -1 करेंगे तो पहला आ गया 887। फिर क्या सूत्र बताया था, ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10, इस मेथड से आपको माइनस करना है। सो ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10 से अगर माइनस करोगे तो लास्ट के आपको 3 नंबर मिल जाएंगे, क्या आ जाएगा 1 1 2, दिस इज द आंसर। कुड यू गिव मी सेकंड वाला, कुड यू गिव मी सेकंड के बाद थर्ड वाला, फिर मैं जिसको टिक कर रहा हूं 7th एंड 9th वाला, एंड ऑफ कोर्स 4th वाला भी। चलिए करते हैं, बताइए अब सेकंड का आंसर क्या है। डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई डिड, पहले -1 करके पहले 3 डिजिट आ जाएगा, और लास्ट 3 डिजिट क्या है, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10 में से सब्ट्रैक्ट करते जो गिवन डिजिट जिसको मल्टीप्लाई करना है। सो लाइक दिस, यस आंसर आ रहा है, शाश्वत का आंसर आ गया, वेरी गुड शाश्वत, शाबाश। बाकी बच्चे शाबाश, विक्रांति सेकंड का आंसर दे रहे हो आप लोग। ये सेकंड का आंसर, ये आपने ये सेकंड आप इसको क्लिक कर, देखो ध्यान रखा करो, ये आपका कॉमन प्रेजेंस ऑफ माइंड वाला स्किल है। ये सेकंड ये वाला है, ये थर्ड वाला। शाबाश, ये बच्चे ने आंसर दिया। दिस इज नथिंग बट 458। आई थिंक रेड इज मोर विजिबल, ठीक है। सो द आंसर इज -1 458, all from 9 last from 10, so this is nothing but 541, 458 541। शाबाश। नेक्स्ट वाला आंसर, थर्ड वाला, बोलिए थर्ड वाला क्या है। अच्छा थर्ड वाला तो आपने दे दिया, -1, शाबाश। 9998, all from 9 last from 10, 0 0 0 1, शाबाश। नेक्स्ट फोर्थ वाला, फिर मैंने किसको टिक किया था, 7th और 9th वाला। फोर्थ वाला
कौन सा क्वेश्चन का आंसर? फोर्थ वाला। यस, वेरी गुड बेटा। विक्रांति ने आंसर दिया, शाश्वत ने आंसर दिया, है ना। कुछ बच्चे पता नहीं कौन सा आंसर दे रहे हैं। अच्छा, इसका दे रहे। इसका आंसर है 6747, ऑल फ्रॉम 9, लास्ट फ्रॉम 10। तो ये क्या आ जाएगा? 3252, 3252। सही है। और वेरी गुड आदिल बेटा, साहिल बेटा, थोड़ा सा कुछ मिस्टेक हो रहा है आप लोग से। अब यहां पे लोग फंस जाते हैं। ये जो 780 है, इसमें से -1 करोगे तो पक्का 779 तो मिलेगा। ये बात तो पक्की है, 779 तो मिलेगा। इसके बाद ये जो आप ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10 करोगे, यहाँ पे एम्बिग्यूटी आएगी कि 10 में से 0 माइनस करना है। तो जब भी ऐसा 0 वाला आएगा तो 0 को कॉपी पेस्ट करना और बाकी पे अप्लाई करना। ऑल फ्रॉम 9, लास्ट फ्रॉम 10, सो ये हो जाएगा 2 एंड ये हो जाएगा 2। 779,220। इज दिस ओके? वेरी गुड श्रेया, राइट। माय डियर स्टूडेंट्स, 880 का क्या आएगा? -1 है ना। तो क्या आ जाएगा क्लास? यस, 8799। अपना ऑडियो ऑन करके बता सकते हो। अभी नेक्स्ट 4 क्या आएगा? ऑडियो ऑन करके बताओ। 1200। हाँ, कैसे 1200? ये जो एक्स्ट्रा के 2 0 है, इनकी अकाउंटेबिलिटी इसमें नहीं आएगी। ऑल फ्रॉम 9, लास्ट फ्रॉम 10, फिर ये ऑल फ्रॉम 9, लास्ट फ्रॉम 10। सो दिस इज 1200। दिस इज हाउ वी डू द मल्टीप्लिकेशन। Isn't that interesting? Very good. आदिल बेटा, शाश्वत बेटा, बहुत सही जा रहे हो। So ये सब तो ट्रिक्स हो गए। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं आप में से कौन सा बच्चा पहले का आंसर देता। मैंने तो अभी टेक्निक सिखाया है, देखते हैं ये वाला आंसर आपका कैसे आता है। चलो, इस क्वेश्चन को करने के लिए कुछ नहीं, 3 पार्ट पोर्शन में इसका आंसर आना चाहिए। पहला, ये जो 32 है, इसमें से एज यूजुअल हम लोग माइनस किए तो ये आ जाएगा 31। और ये 32 के ऊपर एक बार लगाओ, इसके ऊपर बार लगाओ, जो बच गया उतने 99 यहाँ पे थ्रो कर दो, है ना। और फाइनली वाला फंडा, ऑल फ्रॉम 9, लास्ट फ्रॉम 10, सो ये हो जाएगा 68। तो आपका फाइनली आंसर क्या आएगा? 319968। एम आई मेकिंग सेंस? क्या आप लोग मुझे सेकंड वाला, फिर सेवेंथ वाला और 14th वाला, क्या 14th वाला और एक देखते हैं, 11th वाला भी ऐसा ही है, और एक 13th वाला मुझे आंसर दे सकते हैं। समझा क्या किया? यहाँ पे 3 पोर्शन में आंसर आता है। ए पोर्शन, जो नंबर है उसमें से -1 करो तो वो मिल जाएगा। दूसरा, जितने नंबर ऑफ डिजिट है उसको बाहर करो, जो बच गया उसको बीच में फेंक डालो। और तीसरा, ऑल फ्रॉम 9, लास्ट फ्रॉम 10 वाला सूत्र, माइनस वाला यूज करेंगे तो 68। इज दिस ओके? सो यस, सबका आंसर आ रहा है। बताइए आप, सेकंड का आंसर क्या है? वेरी गुड, इसके भी आंसर्स आने लग गए। -1 75, 76 90, ये 99 एक्स्ट्रा का आ गया, ये यहाँ पे फेंक दिया। ऑल फ्रॉम 9, लास्ट फ्रॉम 10, सो ये आ जाएगा आपका 2 एंड दिस इज 4। सही है, शाबाश श्रेया, चेतन, एक्सीलेंट। नाउ बताओ मुझे 343 का आंसर। क्या बात है, आंसर भी आ रहा है। -1 करेंगे तो 342 आ जाएगा। दूसरा बैकस्लैश में क्या रहेगा? ये 3 के टकले पे बार, तो एक्स्ट्रा का क्या बच गया? 99 इधर फेंक दिए। ऑल फ्रॉम 9, लास्ट फ्रॉम 10, ये हो गया 6, ये हो गया 5, ये हो गया 7। आंसर नहीं, जितने 9 बच जाते हैं बेटा, उतने 9 हम लोग यहाँ पे फेंकते हैं। जैसे यहाँ पे जितने 9 बच गए उतने फेंकते हैं यहाँ पे, है ना। तो मुझे बताइए, ये इसका आंसर क्या आएगा? नहीं, ये वाला 13th वाला, पहले ये वाला बताइए क्या आएगा। यस, आगे आंसर बच्चों का कौन है? बच्चा शोएब, विक्रांति, -1, सो 812। ये 3 9 चले गए, अब 3 9 बचे तो 999। और ऑल फ्रॉम 9, लास्ट फ्रॉम 10, तो ये बचा आपका 187। देखते हैं आंसर आया क्या। बहुत सही शाश्वत, वेरी गुड। अब ये 72 वाला करते हैं, है ना।
72 माइनस 1 71 हो गया, एक निपट गया। यहाँ पे इसको छोड़ दिया, 4 9 बचते हैं, कितने 9? 4 9, शाबाश, 9 9 9 9, और ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10, तो ये हो जाएगा 2 8 2 8, आगे आंसर। आर यू एंजॉयिंग गाइस? सो दिस इज हाउ द सेकंड टाइप गोज। हम लोग ऐसे काफी ट्रिक्स देख सकते हैं, मतलब एक हो तो बताओ, है ना। इसके बाद हम लोग ये 9 ये पूरा मॉड्यूल में आता है, हम लोग के वैदिक मैथ्स के मॉड्यूल में आता है ना। स्क्वायर की बात करते हैं। अब मैं आपको सब 2-2 मिनट में स्क्वायर्स, और ये तो बहुत काम आता है, पूरे लाइफ टाइम काम आता है स्क्वायर क्यूबिंग। बेसिकली स्क्वायर का मतलब क्या होता है आप लोग जानते हो। बेसिकली स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ये होता है स्क्वायर, द नेम इटसेल्फ इज स्क्वायर। स्क्वायर मतलब एक एरिया, ये साइड x x x है, तो एरिया क्या होता है x इंटू एक्स। स्क्वायर मतलब एक ही नंबर को 2 बार गुना करना, दैट इज x स्क्वायर, है ना। सो अगर हम लोग देखें बेसिकली, है ना, एक फॉर्मूला होगा a प्लस बी होल स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब ये ab होल स्क्वायर को अगर मैंने ऐसा लिखा, ab स्क्वायर a स्क्वायर बैक स्लैश 2ab बैक स्लैश बी स्क्वायर, तो आप कोई भी नंबर इसमें डालो, आप इजीली आंसर निकाल सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने इसको ले लिया पहला वाला, है ना। एक सबसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं, 12 का स्क्वायर सबको पता है कितना होता है, 144। तो इसको आप क्या ट्रीट करोगे, a इसको b, कितना आसान है, 1 का स्क्वायर 2 इंटू a इंटू b, 1 इंटू 2, फिर 2 का स्क्वायर, आंसर कितना आ गया 144, और सही यही है 144 आंसर है, सही है। अब 22 का स्क्वायर निकालना कितना आसान हो गया, ये देखो 22 का स्क्वायर बोले तो ab का स्क्वायर, तो किसका स्क्वायर आएगा बोलो क्लास, 2 का स्क्वायर, फिर 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर से 2 का स्क्वायर, तो आंसर क्या आ गया 484, आ गया आंसर 484। तो इस प्रकार से आप कोई भी मुझे आप 62 का स्क्वायर करके दिखाओ, 62 का क्या आंसर है, 62 का क्या आएगा। इससे भी आसान तरीका है मेरे पास, वो भी बताएंगे आपको, जो 10-10 सेकंड में आंसर आएगा। ये टिपिकल टाइप है जो आप कहीं पे भी देख सकते हो, एक्सपर्ट्स एज वाला टाइप हम आपको बताएंगे, है ना, राइट। सो 62 का स्क्वायर के लिए आप लोग अपने आप को फिर उसी स्टाइल में कर सकते हैं कि 62 का स्क्वायर इज ए बी का स्क्वायर। सो ये आपका a, ये आपका b, 6 का स्क्वायर 2a इंटू b, फिर क्या आपका इसका स्क्वायर, ये होगा 36, ये होगा कितना 6 टू 12 24, 6 टू 12 12 टू 24, दिस इज 4। सो आपका आंसर आखिर में यूनिट नंबर ही लिखा जाता है, जैसे कि आप जानते हो, पहले 4 आएगा, फिर से 4 आएगा, और ये 2 यहाँ पे कैरी ओवर हो जाएगा, 36 प्लस 2 क्या आ जाएगा 3844। एम आई राइट? सो कितने स्पीड में हम लोग कर सकते हैं। ये क्या आंसर, अरे बाबा 36244 आंसर एक साथ नहीं आएगा ना, वो कैरी ओवर होगा, ठीक है, कॉमन सेंस की बात है। अच्छा, अगर मैं कहूं कि एक मास्टर ब्लास्टर टेक्निक देखते हैं, कि अगर मैं कहूं 98 का स्क्वायर निकालना है, तो ये मेथड से तो निकलेगा, लेकिन इससे भी झक्कास मेथड है कि हम लोग इसके आगे 2 एरो खींचेंगे और 98 को क्या जोड़ने से नियरेस्ट जीरो वाला नंबर निकलता है ये सोचेंगे, बस यही फंडा है। तो 98 को ऐसा क्या नंबर जोड़ू ताकि नियरेस्ट जीरो वाला नंबर जो मिले, बोलो 98 क्या जोड़ू, प्लस क्या जोड़ू ताकि नियरेस्ट जीरो वाला नंबर मिले, +2, शाबाश। तो ये आ गया 100। जितना जोड़ा जाता है रूल बोलता है ना, इसका डिटेल हम लोग अपने एक्सपर्ट से इसमें बताते हैं। सो 98 माइनस 2 96। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करना सबसे आसान है, 9600, और ये जो 2 जोड़ा घटाया उसका मनी मन में स्क्वायर करो तो आंसर आ गया 9604। अब कोई भी आंसर आप ओरली कैसे निकाल सकते हो बताता हूं, ओरली एकदम। अगर मैंने आपको एक बड़ा नंबर दे दिया, चलो 99 का स्क्वायर, तो आप इसको बिना पेन पेंसिल इस्तेमाल करके कैसे करोगे, है ना, डायरेक्ट आंसर लिखो, या फिर आप ऑडियो ऑन करो और बोलो 99 प्लस क्या 99 माइनस क्या, और इसका ओरली आंसर दो। मुश्किल से 10 सेकंड या 5 सेकंड में आंसर आता है। 99 का स्क्वायर क्या होगा? यस विक्रांति शर्मा, यू आर राइट। क्या किया, ओरली करते हैं ना, हाथ भी लगाते है ना। यस, हु एल्स, कोई है और? अरे बस एक ही जन का आंसर आया।
यस साहिल, क्या बात है शाश्वत सभी का। अरे 99 प्लस 1 ओरली कर लेते ना, प्लस 1 100, 99 माइनस 1 98, 98 into 100 9800, 1 का स्क्वायर 1 9801, so this is 100, this is 98 9800, 1 का स्क्वायर 1, so answer is 9801। अब 62 को करके दिखाते हैं, चलिए 62 को कैसे करेंगे वो देखते हैं। 62 का स्क्वायर, बताइए क्या जोड़ू क्या घटाऊं, क्या जोड़ू क्या घटाऊं, कम ऑन बी फास्ट, जो आप बोलोगे वो। वेरी गुड, 2, सो प्लस 2 माइनस 2, सो माइनस 2 करने से नीचे आएगा 60 और ये आ जाएगा 64। 6 इनको मल्टीप्लाई करना बड़ा आसान है, 6 4 24 का 4 कैरी 2, 6 6 36 38 और ये 0, 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, तो आंसर इज 3844। डोंट यू थिंक वो उससे भी स्पीड भी हो रहा है ना। अच्छा कोई मुझे बताया 77 का स्क्वायर क्या आएगा, 77 क्या जोड़ू और क्या घटाऊं, कम ऑन बी फास्ट। वेरी गुड, सो प्लस 3 माइनस 3, प्लस 3 वुड yield 70, माइनस 3 वुड yield 74, राइट। 7 4 28 का 8 कैरी 2, 7 7 49 प्लस 2 51 और 0 का 0, 3 का स्क्वायर 9, सो प्लस 9, तो आंसर इज 5189। आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस? यस, सो क्या मुझे आप लोग 10 सेकंड के अंदर 84 का स्क्वायर निकाल के दे सकते हो? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्या बात है साहिल, विक्रांति, शाबाश, निष्ठा, गुड, दानिश, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सो इस प्रकार से आप कर सकते हो। सो दिस इज, और उसी प्रकार से a प्लस बी होल क्यूब आ गया तो देखो कितना आसान है। a प्लस बी होल क्यूब किसी ने पूछ लिया तो सबको पता है क्या, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। सो अगर किसी ने पूछा बॉस से किसी ने पूछा आप लोग को 33 का क्यूब क्या होता है, तो आप कैसे निकालोगे? तो इसको आप लोग कैसे करोगे, ए बी क्यूब कर लोगे, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ऐसा हो जाएगा। अब ये कैसा करेंगे, ये भी 3ab3, तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब बराबर, ये हो जाएगा 3 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3, ये हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 क्यूब, तो ये हो गया 27। अब देखिए गौर से 27 3, सो कितना हुआ 27, ये आप लोग अलग से कर ही सकते हो, इंटू 3, राइट। 81 या 99 81 दिखता है ना, 2 बार 9, 81 81 27। अब फंडा क्या है, क्या सिखाया गया तो आपको फंडा में कि यूनिट सिर्फ नंबर लिखना। सो ये आ जाएगा 7, इसके ऊपर 2 चढ़ेगा तो ये हो जाएगा कितना 3, तो ये आ जाएगा 3, इसके ऊपर 8 चढ़ेगा तो ये 8 चढ़ेगा तो क्या आ जाएगा 9, तो ये आ जाएगा आपका 9, इसके ऊपर 8 चढ़ेगा तो हो जाएगा 35, आंसर आ गया। सो दिस इज हाउ वी गो। और स्क्वायर रूट के लिए तो मैं आप लोग को जन्नत वाला, एकदम जन्नत महसूस कराऊंगा। स्क्वायर रूट किसी का निकालना बोले तो सिर्फ बच्चों का खेल, 20 सेकंड में। उसके लिए एक चीज आपको बोलनी पड़ेगी, मैं नंबर देता हूं और उस नंबर का आप स्क्वायर करते रहना, है ना, नंबर का स्क्वायर करना, और हम लोग सिर्फ यूनिट प्लेस की तरफ ध्यान देंगे, उसके यूनिट प्लेस के वैल्यू, राइट। सो 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 4 3 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 36, 7 49, 8 64, 9 81, 10 100। अगर आप गौर से देखिए यहाँ पे एक खास बात है, यूनिट प्लेस 0 1 4 9 6, 5 के बाद फिर से रिपीट हो रहा है ना, मतलब इधर भी 0 इधर भी 0, इधर भी 1 इधर भी 1, इधर भी 4 इधर भी 4। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो जब जब ऐसा क्वेश्चन आएगा स्क्वायर रूट का, 2 स्टेप में कैसे आंसर लाएंगे कि आप पीछे से 2 लाइन खींचोगे और उसको ऐसा बैकस्लैश दे दोगे और आप ऐसे करके ऐसे करोगे, तो ये 4 कब आता है वो पता करोगे। यूनिट प्लेस में 4 कब आता है, एक बार 2 जब होता है, 2 का स्क्वायर 4 और 8, सो पीछे में 2 आ सकता है या फिर क्या आ सकता है और 8 आ सकता है, राइट। अब ये नंबर को भरना कितना आसान है। ये जो 10 बच गया, ये जो 10 बच गया, ये किसके और किसके स्क्वायर के बीच में है? क्या 4 और 9 के बीच में है?
नहीं ना सर, क्या 9 और 16 के बीच में है? हाँ, तो 9 और 16 के बीच में मतलब वो 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर के बीच में है। इसमें तो जो छोटा वाला है ना, छोटा वाला कौन है? 3, वो यहाँ पे लगा देते, तो आंसर आ गया 32 या 38। अब सवाल उठता है, सर दो आंसर कैसे आएंगे? स्क्वायर रूट का तो यूनिक आंसर आता है ना, प्लस माइनस में 2 आंसर आते हैं, बट आंसर तो यूनिक होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो 2 आंसर में से एक आंसर फ्रीज करने का एक माहौल तरीका, ये जो 10 है जिसको हाईलाइट किया, उसके लिए ये जो 3 नंबर चुना ना दोनों में से, उसको एक बड़े कंसेक्यूटिव बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करना। तो कितना आया? 12 और ये वाला 10, या फिर बोलो ये वाला 10, इसको कंपेयर करना। क्या 10 12 से छोटा है कि बड़ा है? अगर वो छोटा है तो छोटा वाला आंसर, बड़ा वाला रिजेक्ट। अगर बड़ा वाला है तो बड़ा वाला आंसर, छोटा वाला रिजेक्ट। अगर आपको समझा तो इसको मैं करके दिखाता हूं, अपने आप लोग थर्ड वाला आराम से कर दोगे। 56, आखिरी में आया 6, तो यूनिट प्लेस में 6 आया, तो 6 कब कब आता है बच्चों बताओ? 6 कब कब आता है यूनिट प्लेस में? कब कब 6 आता है? किसके स्क्वायर से आता है? जल्दी लिखो। लिखिए, कब कब? 4 and 6। यस, एक तो वेरी गुड। ये कब आता है? 6 तब आता है जब 4 रहता है आखिरी में, 4 4 16, या फिर 6 6 क्या? 36। अब बारी आती है 11 किसके बीच में आता है? 4 और 9 के बीच में, 9 और 16 के बीच में। मतलब वापस 11 किसके और किसके बीच में आया? 3 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर। इसमें से छोटा वाला लेंगे, तो आंसर 34 या 36। बताओ आप कौन सा चुने? वेरी गुड। 30, ये 11 जो है इसको कंपेयर किसके साथ करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक हायर नंबर के साथ, कंसेक्यूटिव हायर। सो ये आ जाएगा 12। क्या 11 12 से छोटा है? हाँ है, तो छोटा वाला नंबर सिलेक्टेड, बड़ा वाला रिजेक्टेड। तो क्या आप मुझे थर्ड वाले का आंसर दे सकते हो? दैट इज 1369। कम ऑन, शाबाश, एक बच्चे ने स्पीड में आंसर दिया। यहां पे आप देख सकते हो कि 9 है, तो 9 के लिए 2 चांसेस है। 9 कहां पे आता है? 3 का स्क्वायर 9, 7 7 49। अब देखते हैं आगे क्या है। अगर आप देखोगे कि यहाँ पे जो 13 है, यहाँ पे एक बैकस्लैश, ये जो 13 है वो अगेन 9 और इसके बीच में, तो ये 33 भी हो सकता है और 37 भी हो सकता है। लेकिन जब मैं 3 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? 12, और 13 12 से बड़ा है, तो छोटा वाला रिजेक्ट, बड़ा वाला सिलेक्टेड। तो इसका आंसर आ गया क्या? 37। डिड यू अंडरस्टैंड गाइस? समझा सभी को, है ना? सो इस प्रकार से वी कैन मूव ऑन, इस तरीके से चल सकते हैं। बस अब मैं आई एम एट द वर्ज ऑफ कंप्लीशन। एक थोड़ा सा एप्टीट्यूड का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको बोलते हैं काउंटिंग ऑफ फिगर्स। काउंटिंग ऑफ फिगर्स ऐसी चीज है जो जनरली देखा गया कैट में, सीटी में, सीआरटी में, पजल्स में भी बहुत जगह काम आ जाएंगे, है ना? सो बेसिकली इफ आई आस्क यू दिस क्वेश्चन कि ये जो ट्रायंगल है आपके सामने, इसमें कितने सारे ट्रायंगल्स ढूंढ सकते हो? कैन यू काउंट हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर? गुड, 9। ओके बेटा, पहली बात तो कुछ बच्चे बोलते सर आंसर गलत है, सिर्फ 1 2 3 4 और ये बड़ा वाला 5। ऐसा नहीं है, 1 2 3 4 बड़ा वाला 5, 2 2 का मिला के ट्रायंगल जो बन रहा है ना, ये 2 2, तो 6 7 8 और 3 3 का 9 और ये 3 का 10, तो टोटल 10 ट्रायंगल है। और इसका आंसर कितना आसान है? 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4, द आंसर इज 10। सबको जोड़ दो, आंसर आएगा। और एक्चुअली ये क्या है? 1 + 2 + 3 + 4
ये सम ऑफ 4 टर्म्स है जो आप लोग ने बचपन से लेके अभी तक पढ़ा, n into n plus 1 by 2 which is nothing but 4 into 5 by 2, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 5s are 10, आंसर इज 10। तो अगर बड़ा ट्रायंगल आ जाए तो देखो इसका आंसर कितना आसान हो जाता है। अब बताओ इसका आंसर क्या है? 1 plus 2 plus 3 plus dot 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 plus 30। तो बताओ सम ऑफ क्या है? 30 टर्म। तो सम ऑफ 30 टर्म का आंसर क्या आ जाएगा? n into n plus 1 by 2, बोले तो 30 into 31 by 2, 2 15, 15 एकम 15 का 5 कैरी 1, 15 3 45 और 1 46। सो 465 इज द आंसर, है ना? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा अब बताओ तो इसका आंसर। चलिए ये करने के बाद हम लोग बंद कर देंगे रीजनिंग को भी, है ना? हमारे जो टॉप एजुकेटर है नितिन राठौड़ सर, उनका जो पजल वाला सेशन है वो हम लोग अलग से लेंगे बिकॉज वो टिपिकल सेशन है। एंड सर का समहाउ ये सेशन में हम लोग ने जो ऑर्गेनाइज किया था उसको हम लोग एक एक्स्ट्रा सेशन में लेंगे बिकॉज आई कैनॉट make you go through a very long session because your time is also important. So इसको करने के बाद हम इसको वाइंड अप करेंगे। बताइए आप क्या करना है? कितने हैं इसका आंसर? 1 2 3 4 5 6। इस 6 की वजह से अपना आंसर क्या आएगा? 6 into 7 by 2, n into n plus 1, एक नंबर उससे एक बड़ा बटे 2, तो 42 by 2 दैट्स 21। यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3 4, तो कितने नंबर आएंगे? 10। अभी तो आगे बताया कैसे आएगा। 4 into 5 by 2, 5 दूनी 10, 1 2, तो आंसर क्या आ जाएगा? है ना 3। यहाँ पे 1 2 3 4 फिर से 10, 1 2 3 4 फिर से 10, तो क्या हुआ? 10 10 20 10 30 और 51 plus 3 54, तो आंसर इज 54। यस वेरी गुड विक्रांति। सो विक्रांति ने पूरे क्लास में आंसर दिया। सो दिस इज हाउ वी गो एंड वी कैन कीप ऑन गोइंग एंड दिस इज हाउ आवर एक्सपर्ट्स एज क्रिएट्स। आपने विद इन नो टाइम अपना एप्टीट्यूड में थोड़ा सा इंक्रीमेंट देखा सिर्फ एक 20 मिनट के टीचिंग में। और सोचो ये मटेरियल बनाने के पीछे हम लोग ने, हमारी पूरी टीम ने, नितिन राठौड़ सर जो इंडिया के टॉप एजुकेटर है, जिनका नाम अगर आप गूगल में डालोगे तो एल्गोरिदम पकड़ लेता है, नितिन राठौड़ सर करके आप डालो, ही इज अ टॉप एजुकेटर एन अकेडमी में। 10 साल की मेहनत, 10,000 घंटे। इट्स लाइक ओलंपिक्स कि एक 40 सेकंड के गेम के लिए माइकल फेल्प्स 20,000 घंटे और कई साल दे देते हैं, है ना? सो वैसे ही हम लोग ने ये ओलंपिक्स खेला है 10 साल में, 10,000 घंटे में, कई सैकड़ों बुक्स, कई घंटे स्टडी आवर्स देने के बाद कॉन्सेप्ट, फाउंडेशन एंड एक्यूरेसी एंड स्पीड जिस लेवल पे हम लोग ने अभी देखा 10-10 सेकंड में, सारे टॉपिक में डेवलप कर लिए। चाहे वो क्वांटिटेटिव एबिलिटी के परसेंटेज हो, एवरेज मिक्सचर एलिगेशन हो, टाइम स्पीड डिस्टेंस हो, ये सब आता है। या फिर रीजनिंग में आपके जो भी अभी आपने देखा, काउंटिंग ऑफ फिगर्स हो, सिलॉजिज्म्स हो, जो भी हम लोग उसमें सब में रिगरस वर्कआउट कर लिए हैं। और ये कॉम्प्रिहेंसिव मॉड्यूल आपके सामने एज अ मटेरियल आता है और जिससे आपका बहुत सारे टू डू लिस्ट सेटिस्फाई हो जाते हैं। देयर आर ग्रेट लर्निंग आउटकम्स व्हिच विल मेक यू क्रैक एनी ऑफ द एंट्रेंस एग्जाम, राइट? नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपर्ट एज इज लाइक दिस। आप देखिए तब से मैं जब बात कर रहा हूं तो एप्टीट्यूड की बात हो रही है। इसका मतलब लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि इंटेलेक्चुअली हम लोग साउंड हो जाए और ग्रेजुअली इवेंचुअली लाइफ के एक्सपीरियंसेस के साथ हमारे स्किल होन हो जाए, मतलब अपना एटीट्यूड डेवलप हो जाए या डेवलप होते रहे, राइट? नाउ सबसे पहला स्टेज क्या होता है? द फर्स्ट स्टेज इज मैथ्स, गेटिंग मैथ्स रेडी। व्हाट आई से, इट इज अ पार्ट ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड द सेकंड इज रीजनिंग, है ना? थर्ड आपके कॉन्सेप्ट, टिपिकल कॉन्सेप्ट मैंने बोला ना, सेट थ्योरी, लॉगरिथम, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, नॉर्मली जो टीएसडी, परसेंटेजेस, एवरेज मिक्सचर एलिगेशंस। एडवांस लेवल पे एक बार कॉन्सेप्ट है तो एडवांस लेवल का जैसे कैट हो गया, गेट के क्वेश्चंस हो गए, यूपीएससी के क्वेश्चन हो गए, एफ कैट के हो गए, को क्यूब्स, ई लिटमस के हो गए, आप लोग इजीली क्रैक कर सकते हो एंड ऑफ कोर्स प्रैक्टिस। सो मिस्टर कैट would make an aspirant rise to the top with a proper career on hand. So
there is a one-to-one training in Experts Edge. There is a dedicated faculties and learning and reading zone with repetition of concept through the recorded sessions and the GDPI and comprehensive question and the repeat class. So this is the all in all. अब takeaways क्या है आप लोग के लिए? Before you actually leave this session, let me tell you, Vedic maths in itself is a big thing. इस सेशन को भी हम देते हैं. मैं दीपांकर बनिक, जैसे कि मैम ने बताया, IIT JEE 15 साल से पढ़ा और 10 साल से एप्टीट्यूड पढ़ा रहा हूं. सो कुल मिला के मेरा एक 15 + 10 25 का एक्सपीरियंस है. नितिन राठौड़ सर 10 साल से मोर देन अ डिकेड टॉप एजुकेटर तो है और कई बच्चे को IIMs में भेज चुके हैं और स्टेट लेवल पे जमनालाल बजाज में भी भेज चुके हैं. हाल ही में यूट्यूब में एक सेशन नितिन राठौड़ सर के इसमें लिया है एक्सपर्ट एज के दायरे में, जहां पे अनुज करके एक बच्चा है जिसका 30 लाख का पैकेज है, जो अमरावती गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का पास आउट है, बाद में सर के पास से CET क्रैक किया और जमनालाल बजाज के थ्रू आज बहुत बढ़िया प्रोफाइल में है, परफेक्टली वैन मेल में है ना, शायद इटालियन कंपनी है. सो व्हाट आर द टेकअवेज? द फर्स्ट टेकअवे इज, इफ यू आर अ पर्सन हु इज एस्पायरिंग फॉर सम कॉर्पोरेट CRT, दैट इज कैट, बड़े जगह जाना, अगर IIMs अहमदाबाद से लेके बेंगलुरु से लेके कोलकाता, या एनी ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम विच टेक्स केयर ऑफ एप्टीट्यूड, ये एक्सपर्ट एज आपको देगा. जॉब्स, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट के लिए एक्सपेक्ट्रॉन्स पिक्चर में आएगा. ये एक्सपेक्ट्रॉन्स क्या है? ये आपके लिए एक बोनस है. इस भारत में जितने भी जॉब सीकर्स है, 5 में से 4 लोग को एक्सपेक्ट्रॉन्स केटर करना शुरू कर दिया है. आप लिंक्डइन में प्रोफाइल देखिए, अगर मेरी बात का आपको कहीं से भी एक क्रॉस वेरीफाई, लिंक्डइन इज द बेस्ट वे टू नो द प्रो पोर्टफोलियो. मेरे ख्याल से 36,000 वहां पे फॉलोअर्स है और ये स्कैन कोड आपके लिए जन्नत हो सकता है, क्योंकि अगर इसको स्कैन किए तो आपके डिटेल्स हमारे पास आएंगे, या फिर मैं भी एक नंबर सबमिट करूंगा, या ग्रुप भी आपका बन गया जिसमें आपको CV अगर आता है तो एक 3000 प्रीमियम एक्सपर्ट काउंसलिंग मुंबई से, ये कंपनी मुंबई की है, IIT पवी के एलुमनाई लोगों ने इसको फाउंड किया है, तो आपका फ्री में दिया जाएगा. राइट नाउ एक्सपेक्ट्रॉन्स बेसिकली हैज 3,500 कंपनीज. ये कोरोना काल के पहले की कंपनी है, 3 साल पुराना. अभी 2,500 से 3,500 बन गए, और 1000 नहीं, ये बढ़ चुका है. द गुड पार्ट, लाखों बच्चे यहां से ट्रेन होके जॉब में लग चुके हैं. यहाँ पे 5,000 इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स हैं, चाहे वो आप गूगल की बात करो या माइक्रोसॉफ्ट की बात करो या कोई भी कंपनी की बात करो, यू विल फाइंड वन, या गोल्डमैन सैक्स की बात करो. राइट यहाँ पे एवरेज पैकेज बच्चों को 4 lakhs per annum, which roughly comes around 33 to 35K, ऐसा मान के चलो, उनको मिलता है. और इसमें दोनों डोमेन है, एक कोर वाला डोमेन है ना, और एक जिसको हम लोग बेसिकली प्लस बोलते हैं, और एक नॉर्मल डोमेन है, जैसे किसी को HR में जाना है, सेल्स में, ऑपरेशन से, मार्केटिंग में, उसको प्रो बोलते हैं. दोनों फिर है ना. और एक बच्चे को, जैसे कि मैंने जोमेटो के जैसे बताया था, 5 इंटरव्यू लाइनअप्स या 5 रेफरल जॉब्स मिलते हैं. और यहाँ पे खास बात है, यहाँ पे आपको ये वाला चीज होता है जो आप लोग को टैग लगा देता है कि आप एक्सपीरियंस्ड हो, आप फ्रेशर नहीं हो. वो है लाइव प्रोजेक्ट, लाइव इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट या कैपस्टोन प्रोजेक्ट, जिसको करने के बाद जिस कंपनी में आपने वो प्रोजेक्ट किया उसी में ही आपका इंटरव्यू लाइनअप हो सकता है 3,500 कंपनीज में से, या फिर रेफरल आपको दिया जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन योर सर्टिफिकेशन. और आप लोग किस एक्सटेंट तक एम्प्लॉयबल हो, ये अगर आप लोग को जानना है बेटा, ये अगर आप लोग को जानना है, जस्ट गिव मी अ मिनट. सो आप लोग को एक रिपोर्ट दिखाते हैं. ये है एक रिपोर्ट, ये रिपोर्ट आपका है, ऐसा समझिए ये आप हो. क्या आपके एबिलिटीज है, आपके इंटरेस्ट क्या है? एक मिनट, सॉरी फॉर दिस. हाँ, आपका इंटरेस्ट क्या है ना, आपका एबिलिटी क्या है, आपके वर्क वैल्यू, स्किल, नॉलेज क्या है, ये आपका रिपोर्ट देगा, है ना. आपका समरी देखिए, समरी ऑफ द रिजल्ट. आपका इंटरेस्ट क्या है, आप सोशल और एंटरप्राइजिंग हो, आपका जो इंटरेस्ट का जो इंक्लिनेशन है. वर्क वैल्यूज क्या है, यू आर लाइक
टारगेट ओरिएंटेड, अचीवमेंट बेस्ड, यू आर अ वेरी सपोर्टिंग पर्सन। वर्किंग स्टाइल क्या है, यू आर हैविंग अ वेरी प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। शायद आप एडजस्टमेंट वाले नहीं हो, ये दिख रहा है ना। आपका कॉन्साइंस बहुत अच्छा है ना, कहाँ पे आपको अपना राइटियसनेस यूज करना है वो आपको पता है। आपकी एबिलिटीज कैसी है, आपके जो जेस्चर है वो कैसे है, स्पेशल एबिलिटीज, मेमोरी एबिलिटीज कैसी है, वो उसके बारे में बताया गया। आप कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, सिस्टम स्किल को आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो, आपका नॉलेज एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन में है। इस प्रकार से आपके बारे में एक रिपोर्ट बनता है, और ये रिपोर्ट जब बनता है उससे आप ये पता कर सकते हो कि वेयर डू यू स्टैंड, टू व्हाट एक्सटेंट यू आर एम्प्लॉयबल, है ना। तो ये पूरा रिपोर्ट आपको बनके मिलेगा। और आप जैसे कि मैंने बोला, इसका 1-to-1 आपको काउंसलिंग किया जाएगा। आपको इसका क्या किया जाएगा, 1-to-1 काउंसलिंग किया जाएगा। राइट, जस्ट गिव मी अ मिनट। Well, so my dear students, this is a premium takeaway that you can have कि आपका एक साइकोमेट्रिक एम्प्लॉयबिलिटी रेडीनेस टेस्ट विच विल डिसाइड योर एम्प्लॉयबिलिटी स्कोर एंड मेक यू अंडरस्टैंड वेयर यू स्टैंड इन द कंपटीशन। अपने बारे में अपना आईना दिखाने वाला ये एक बेहतरीन तरीका है। ऑफ कोर्स इसका जो कॉस्ट है वो इन बच्चों को जो अटेंड किए हैं उसको 200 वेव ऑफ हो जाएगा, आप इसको 700 में ले सकते हैं। सो ऑल इन ऑल व्हाट आई अंडरस्टैंड, these are the 5 takeaways that you have. Vedic Maths 1, CAT CRT competitive from our expert stage. This is our unit, a franchisee unit from Mumbai, Expectrons, wherein you can get training, jobs, placement, internship. आपका ट्रेनिंग भी हो सकता है इसमें, हाँ, आपके सारे स्किल्स को होन किए जा सकते हैं, एक्सेप्ट फ्यू टेक्निकल ट्रेनिंग। एम्प्लॉयबिलिटी रेडीनेस ले सकते हो, और आप हमारे इंस्टीट्यूट में आ सकते हो, और ये सारे के लिंक आपको YouTube के डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। इन सब के व्हाट्सएप लिंक आपको मिल जाएंगे। राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय एंड। सो it's we started sharp at 11 and it's 12:30. We are very prompt about our time. So this is Dipankar Banik saying signing off, and before I sign off I would love to mention one thing over here कि आज का जो सेशन है जो अंजुमन द एस्टीम्ड इंस्टीट्यूट अंजुमन कॉलेज ऑफ ACET ने के द्वारा कंडक्ट किया गया, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, उसमें मैं सबसे पहले तो यहाँ पे सारे बच्चों को थैंकफुल हूं कि उन्होंने मेरे को 1.5 घंटा लिटरली झेला है। और उससे भी बड़ी बात, मैं ये अपॉर्चुनिटी लेता हूं कि जो हमारे रेस्पेक्टेड प्रोफेसर डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली साहब है, प्रिंसिपल ACET, उनको मेरा तहे दिल से शुक्रिया। प्रोफेसर डॉक्टर अर्चना श्रीहाते मैम HOD EE ACET, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया। और प्रोफेसर मिसेस नाहिद खान मैम, कोऑर्डिनेटर EE डिपार्टमेंट, उनका भी शुक्रिया। उसी प्रकार से यहाँ पे हमारे प्रिंसिपल सर और डॉक्टर अहमद साजिद खान सर जो HOD ETC के हैं, और प्रोफेसर इराम नौशिन सर जो कोऑर्डिनेटर है ETC डिपार्टमेंट के, मैम सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, इराम मैम जो यहाँ के कोऑर्डिनेटर है, उनका भी बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया, जो इस पूरे सेमिनार को कंडक्ट कराना में कारगर रहे। एक्सपर्ट सेज के स्वप्निल सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप मैंने आपको बोर नहीं किया, क्योंकि आज की दुनिया में बोर बहुत लोग करते हैं। आई होप मैंने अपना पॉइंट आप तक पहुंचाया, और आई होप ये रिश्ता यहाँ पे खत्म नहीं करना है। ये रिश्ता क्या कहलाता है वो आगे के जो हमारे टर्म्स होंगे आप बच्चों के साथ, आपके कॉलेज के मैनेजमेंट के साथ, वो डिसाइड करेगा। सो विद दिस इज दीपांकर बनिक सेइंग साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत। ओवर टू यू मैम, थैंक यू। Okay, thank you so much, sir. And it would be really great and enjoyable experience for all of us, even for me also, after such a long time. Thank you. And I would like to thank you on behalf of Anjuman College of Engineering and Technology that you have given us your valuable time. And I would like to thank Swapnil sir as well. Actually, he took an initiative for that. And I would like to thank Experts Edge as well. And we are looking forward to have more such sessions with you. Okay.
Thank you so much, sir. Looking forward, ma'am. Same. Yeah. Ma'am, one more thing I would like to mention. Naushin sir Naushin ma'am बोल रहे हैं ना? Yes, yes. मैम ग्रेट टू लर्न, आपका कम्युनिकेशन स्किल ऑसम है। मैं चाहता हूं कि आपके साथ हम लोग एक बार मिले, आपको भी एम्पैनल करें हमारे एक टीम में, है ना, ताकि thank आप you भी so much. हमारे बच्चों को एक ट्रेनिंग दे, आपका एक रिसोर्स, एज अ रिसोर्स पर्सन हम आपकी सेवा लें। थैंक यू सो मच Okay, मैम। thank you so much, sir. It would be a pleasure for me to attend that. And I'm looking forward to connect with you again. Thank you so much. Indeed, we too look forward. Right. And thank you, dear students. आप लोग जाने के पहले कुछ क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो आप पर्सनली अपने स्वप्निल सर को पूछ सकते हैं, है ना। मैं अपना नंबर बेटा शेयर नहीं कर सकता, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, है ना। I would like to thank all the participants as well. All the students, this was a really great opportunity to earn from sir. And if you are having any queries, you can ask here as well. And if you are not comfortable here, you can contact personally with me or with Swapnil sir as well. Okay. Thank you so much, everyone. Here we are ending up with the session. Thank you all. Thank you, ma'am. Thank you. Okay, see you. Jai Hind.